So, good morning friends, myself Vivek Prajapati, and today topic I am going to cover it corporate social responsibility. What is called, that is called CSR. 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 What does it mean? It means corporate social responsibility. See, every business organization has profit motive. Am I right? Yes, that's true. But देखिए सर, हर एक कंपनी जो प्रॉफिट मोटिव तो होता है, बट उसके साथ भी सम अदर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो इज ऑल्सो देयर. सो प्रॉफिट के साथ साथ हर एक कंपनी का और भी मोटिव होता है. दैट मोटिव इज नोन एज CSR. सो क्या मोटिव होता है बच्चों, माय फ्रेंड्स? सो दैट मोटिव आर नेचुरली योर सोशल, इकोनॉमिकल and your environmental duty. So in CSR activity we are going to deal about all these things. So sustainability report क्या होता है? Sustainability report and CSR report, what is the difference between that? So this topic I am going to cover is corporate social responsibility. जो है CS प्रोफेशनल का जो है ये एथिक्स गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है. और जो है कि CA इंटर में, कॉस्टिंग इंटर में, CS इंटर में भी ये CSR एक्टिविटी क्या टॉपिक कवर होता है. और इट इज द यूजफुल फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द इन द एनवायरनमेंट, जो कि ये टॉपिक सबके लिए बहुत ही यूजफुल और नेसेसरी है. एंड आज का जो टॉपिक है मैं इसमें कवर करने वाला हूँ बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ CSR, ठीक है, मीनिंग ऑफ CSR and corporate governance, citizenship or advantages of CSR, then corporate voluntary guideline, then national voluntary guideline on CSR, then DEP guideline on CSR, or next is your Companies Act 2013. What are the different guidelines? What are the rules? What are the committee to be formed? And how much amount to be spent in CSR? Then who are responsible, what are the committee to be formed, all detail जो हम लोग आज पढ़ने वाले इन CSR as per Companies Act 2013. Then इंटरनेशनल CSR प्रैक्टिस, इंटरनेशनल में जो है फॉरेन में CSR का पॉलिसी क्या है, all this thing I am going to cover. Then corporate citizenship is beyond the law, then ISO 2600, then CSR audit. So these are the topic I am going to cover. Conceptual meaning: corporate citizenship, CSR voluntary guideline, national voluntary guideline, NVG, DEP guideline, Companies Act 2013, section 135, internal CSR practice, corporate citizenship beyond CSR law, ISO 26 and CSR audit. So these are the topic which is I am going to cover today. So what is the meaning of CSR? Corporate social responsibility. See, in CSR activity तीन चीज इन्वॉल्व होता है. एक है कॉर्पोरेट, दूसरा है सोसाइटी, एंड थर्ड इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो तीन चीज मिला के जो होता है उसको CSR बोलते हैं. गॉट माय पॉइंट फ्रेंड्स? एक हो गया कॉर्पोरेट, देन हो गया सोसाइटी, and third is your responsibility, then that is called CSR. So this is called CSR. Got my point? So CSR is the self-regulating body model that help the company to be socially accountable to its stakeholder and public.
जो कि कंपनी ने आपको पहले बताया था, जो कंपनी का जो है उनका रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी जो का जो है खाली एम जो है खाली कुछ नहीं है कि जो CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ इज रेगुलेटेड, इट इज ए बिजनेस मॉडल, इट इज ए बिजनेस मॉडल दैट हेल्प द कंपनी फॉर सोशली अकाउंटेबल। कंपनी का जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोसाइटी की टुवर्ड्स में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेक होल्डर के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और पब्लिक के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज व्हाट कॉल्ड CSR। देखिए पहले के जमाने में इन ओल्डर एज, जैसे जब राजा महाराजा शासन करते थे तब भी CSR था कि नहीं था? एकदम था, बट हम लोग उसको दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, बट उससे अभी का जो टर्मिनोलॉजी है वो बड़ा सेंस है। कैसे? पहले गरीबों को खाना खिलाते थे, ठंडा के टाइम में कंबल बांटते थे, एजुकेशन स्कूल वगैरह बना करते थे, गुरुकुल में भेजते। सो व्हाट आर दिस थिंग? दीज आर द social activities which are carried on by the Raja or Maharaja. Similarly also nowadays this work is carried on by the company, but हम लोग उसको देखेंगे what is philanthropy and what is the difference between CSR, what is sustainability report and CSR. Got my point? So in 1950s, so started the model of CSR when there is a more community known as social responsibility. 1953 Howard Bond public book that social responsibility of the businessman. जो हावर्ड बाउंड जो हैं 1953 में एक बुक पब्लिश किए थे, उसका नाम क्या था? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन। तो CSR मीन्स ओपन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द बिजनेस प्रैक्टिस। CSR क्या है? It is a open business practice. The CSR Asia social enterprise operate the economically social environmental sustainable। जो कंपनी का जो एम है खाली एक दिन के लिए चलाना नहीं है, कंपनी हैज टू रन फॉर द लॉन्ग पीरियड, मे बी फॉर द ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड like this. It is called going concept, जैसे हम लोग अकाउंटिंग में पढ़े हुए हैं। तो similarly the objective of the business is not to further earn profit but have some other objective like social, economical and your benefit for the stakeholder. And sustainability report. What is sustainability? देखिए सस्टेनेबल मीन्स क्या होता है? इट इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। एनवायरमेंट के बारे में सोचना है। कंपनी शुड नॉट प्रोड्यूस और मेक एनी प्रोडक्ट व्हिच इज हार्म फॉर द सोसाइटी, और कंपनी शुड नॉट गो इनटू सम एक्टिविटीज व्हिच इज हार्म फॉर द एनवायरमेंट। नेचुरल जो हमारे जो अर्थ है, जो धरती माता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका पोटेंशियलिटी को हम लोग नष्ट नहीं करेंगे। Got my point? And the resources should be used in a such a way it will make future generation useful also. ये नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेस को आप पूरा खत्म कर दें, आने वाला नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ ना बचे। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ऐसे नहीं करेगा, नहीं करना है। Got my point? So that is what called sustainable for future generation. Then CSR generally accepted applying to the firm operate domestic and global economy. CSR जो applicable है खाली इंडिया इंडस्ट्री के लिए नहीं है, it is applicable for the foreign industry and industry operate for the other countries also. So basically जो essential CSR activities का क्या क्या essential है और features क्या है? Main feature of CSR. So these are the 4 features of CSR: social, economical, ethical and moral responsibility of company and manager. जो भी कंपनी है और उसका जो मैनेजर है
उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? सोसाइटी के लिए सोचना है, इकोनॉमी मतलब खुद सस्टेनेबल होना है, और एथिक्स, जो भी एथिक्स है, फाइनेंशियल लॉ, योर मार्केटिंग एथिक्स, ऑपरेशनल एथिक्स, ऑल द एथिक्स शुड बी कंप्लाइड। रूल रेगुलेशन जो भी है उसको मानना है और उसको ऑबे करना है। देन कंप्लायंस ऑफ लीगल एंड वॉलंटरी गाइडलाइन, दैट्स आई टोल्ड यू ऑलरेडी एक्सप्लेन। ठीक है, जो भी लॉ एंड रेगुलेशन को मानना है, जो भी एप्लीकेबल लॉ फॉर द पर्टिकुलर इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट कोल इंडिया, देखिए लॉ बहुत एप्लीकेबल है। जैसे हो गया नॉर्मल जैसे लॉ है, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, नेचुरली इट इज ए कंपनी, लिस्टेड कंपनी एप्लीकेबल तो सेबी एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, इनकम टैक्स तो है ही है, लेबर एक्ट है, साइड में डीजीएमएस गाइडलाइन है, माइंस एक्ट है। तो सिमिलरली हर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक लॉ भी एप्लीकेबल होगा और अदर लॉ एप्लीकेबल, उसको भी कंसिडर करना है। देन challenges the process of need of economy and social disadvantage group, जो भी challenges आते हैं while running the business, that has to be addressed and solved. Then management and management of corporate social responsibility activities, जो भी CSR activities है उसको मैनेज करना, यू हैव टू मैनेज द CSR एक्टिविटी। हम लोग देखेंगे जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो है शेड्यूल 7 में बहुत सारे एक्टिविटीज आते हैं जो कि CSR उसमें कवर होता है। हेलो, सो दीज आर द सम एसेंशियल ऑफ CSR corporate social responsibility. Then corporate philanthropy and CSR, CSR और philanthropy में क्या डिफरेंस है? What is the main difference between CSR और philanthropy? देखिए philanthropy क्या है, देखिए मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था, जैसे एंशियंट एज में, पुराने जमाने में राजा महाराजा जब राज करते थे, वो लोग क्या देते थे? गरीबों को खाना खिलाते थे, ठंडा का टाइम में कंबल देते थे। ठीक है, जैसे अभी का टाइम में लंगर होता है, देखे होंगे गुरुद्वारा में लंगर लगता है। ठीक है, सिमिलरली इन पूजा आल्सो समटाइम दे आर गिविंग द फूड, फ्री फूड खिलाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट सम हरे कृष्ण टेम्पल आल्सो अर्लियर दे आर गिविंग द फ्री फूड, नाउअडेज दे आर टेकिंग सम नॉमिनल अमाउंट आल्सो दे आर गिविंग फूड। व्हाट माय पॉइंट? गरीबों को खाना खिलाना। सो दीज आर कॉल्ड फिनोथ्रॉफी। फिनोथ्रॉफी मतलब हो गया इट इज जस्ट लाइक ए चैरिटेबल वर्क। ठीक है, और एक क्यों होता है? जनरली इट इज डन बाय द इंडिविजुअल। जो फिनोथ्रॉफी कौन करता था? इंडिविजुअल करते थे। ठीक है, बट जो CSR है, CSR अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं CSR एंड फिनोथ्रॉफी में डिफरेंस। देन CSR इज डन बाय द नाउ कॉर्पोरेट, इट इज नॉट बाय द इंडिविजुअल। जो CSR होता है इसमें रूल रेगुलेशन को कंप्लाई करना पड़ता है, लीगल एक्सपर्ट आर देयर, whereas in philanthropy there is no legal rule and law is applicable. Got my point? Ethics, transparency, accountability नहीं था, ये वॉलंटरी हम लोग करते थे। बट CSR is also voluntary work, but it is the responsibility of the business. They have to take about the interest of the stakeholder and development of the stakeholder. So these are the difference between the your CSR and philanthropy. So let us go through it. Corporate philanthropy and corporate social responsibility. So corporate philanthropy and corporate social responsibility are similar concept, often overlap in practice. बहुत सारे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में इट इज वो लगता है कि दोनों सेम है, ओवरलैप होता है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट, in the fact relationship between CSR and philanthropy is often barely distinguishable or each other, the term are used the same interchange, sometimes interchangeable. We are using the two words philanthropy and CSR. Philanthropy means this is act of donating money, goods or time of effort of charitable cause, जो भी charitable cause regarding known as philanthropy.
फिनोथेरेपी जनरली क्या है, एक क्या, इट इज एक्ट ऑफ डोनेटिंग, जो हम लोग डोनेट करते हैं। क्या देते हैं, पैसा दे सकते हैं, गुड्स सामान दे सकते हैं, या टाइम और एफर्ट दे सकते हैं फॉर चैरिटेबल कॉज। Got my point? So these are called phenotherapy. Phenotherapy is equated with the benevolence और charity to the poor. किसको देते हैं, गरीबों को देते हैं और नीडी को। जो भी गरीब और नीडी को खाना खिलाते हैं, वो लोग को पैसा देते हैं या गुड्स टाइम स्पेंड करते हैं, गुड्स देते हैं या टाइम देते हैं। Got my point? नेक्स्ट हो गया, बट फिनोथेरेपी जो है ये बहुत छोटा है, बट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का स्कोप बहुत बड़ा है। Got my point? The phenotherapy concept is very small, where the CSR concept is very broader one. The divided between the phenotherapy and CSR is pretty clear when you take the hard look of the concept each, then both practical supervised by the corporations. आप लोग जब इंडेक्स पढ़ेंगे CSR एक्टिविटीज क्या है तो आपको क्लियर और भी हो जाएगा। Got my point? So these are about the difference between CSR and phenotherapy. Then we knew to understand, we should know why the CSR activity is required. Next our topic is why CSR activity. देखिए बिना रीजन का अगर कोई चीज पढ़ेंगे तो वो आपको फायदा नहीं होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाई CSR. CSR क्यों किया जाता है? सो जनरली हम लोग CSR क्यों करते हैं? वी आर डूइंग द CSR फॉर द पब्लिक इमेज। अब अगर कंपनी CSR एक्टिविटी करता है तो पब्लिक में क्या है, कंपनी का बढ़िया इमेज होता है। कंपनी को जो है सोचते हैं सोसाइटी, हाँ ये बढ़िया कंपनी है। जब आप सपोज गांव में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिए हैं, सो नेचुरली क्या होगा, आप कंपनी का नाम अच्छा होगा और ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। देन हो गया बिल्डिंग पॉजिटिव इमेज। जैसे मैंने बताया था, स्कूल खोल दिए, स्कूल बना दिए, स्कूल में बेंच डेस्क और कुछ भी पढ़ाई का इक्विपमेंट्स दे दिए, सो बच्चे लोग क्या होगा, खुश होंगे, सोसाइटी के लिए क्या है, अच्छा है। सो क्या होगा, इससे पॉजिटिव इमेज जो होगा और फेवरेबल पब्लिक इमेज बढ़ेगा। सेकेंडली बेटर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो हो सकता है, बिकॉज CSR एक्टिविटी जब पढ़ेंगे आप, कंपनीज एक्ट बहुत सारे एक्टिविटीज उसमें कवर होता है शेड्यूल 7 में। उसमें एक है योर वोकेशनल ट्रेनिंग। कंपनी वोकेशनल ट्रेनिंग हर एक, जैसे आप टाटा में भी देखिए ना, उसको CSR एक्टिविटी में दे आर प्रोवाइड द वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे गांव में सिलाई सिखाना, बुनाई सिखाना और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करना, तो कि अपना इंडिपेंडेंट जो है अपना फूडिंग का अरेंजमेंट वो कर पाए। सो क्या होता है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। दे आर ट्रेंड सो दैट they are getting the training so that they will able to sustain in the current scenario. Then decision making, it help the greater decision making. क्या होता है जनरली, एक कंपनी को जब आप गांव में फॉर एग्जांपल कोल इंडिया के बारे में ले लो, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब कोयला कहाँ से निकलता है, मिट्टी से निकलता है। उसके लिए क्या होता है, लैंड चाहिए, तो जमीन को खाली करना पड़ता है। अगर गांव बसा हुआ है तो उसको खाली करिएगा, तो कैसे खाली करिएगा, सो यू नीड टू गिव सम compensation as well as the you have some activities to be taken as CSR in the your coal field affected area. so उससे क्या होता है, कंपनी के बारे में बहुत बढ़िया भी इमेज आता है, और जब कोई भी कंपनी नया डिसीजन लेना चाहता है गांव वालों को हटाना, तो इजीली वो लोग हट जाते हैं। so it help for the better decision making of the company. Then it impact the internal and external environment, balance between the authority and responsibility, जैसे मैंने इसका पहले एग्जांपल दिया था। तो CSR एक्टिविटी से क्या होता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होता है। क्या होगा,
अगर कंपनी CSR एक्टिविटी करता है, जैसे कोल इंडिया, वो क्या करता है, पेड़ बहुत, जैसे माइनिंग हो गया वहां पर ओवरबर्डन जो होता है कोयला निकाल के उसको डंप किया जाता है और पेड़ पूरा उगा देते हैं। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हुआ। गॉट माय पॉइंट? सो सिमिलरली व्हाइल दे आर डूइंग माइनिंग ऑल्सो, पानी स्प्रे करते हैं और गांव में कुआं और पानी का फैसिलिटी देते हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराते हैं, और सो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑल्सो carried on. So these are the some of the activities which protect the environment and promote the goodwill of the company. Then फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपका जब ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा होता है, जो भी कंपनी आपको, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर लोन लिए होंगे तो आपका ब्रांड इमेज क्या होगा, बढ़ेगा। जब ब्रांड इमेज आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा होगा, और उससे क्या होगा, गुडविल जब आपका अच्छा होगा तो जब आप लोन लेते हैं कंपनी से और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आपका ब्रांड इमेज होता है। सो इट हेल्प फॉर द बिल्डिंग द ब्रांड इमेज व्हिच योर फाइनेंशियल कंडीशन विल बी इम्प्रूव एंड क्रेडिट वर्दीनेस विल बी इंक्रीज। सो इजीली आपको लोन वगैरह मिल जाता है और आपको बहुत ही बढ़िया इमेज रहता है। सो नेक्स्ट हो गया आपको स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर आर सेटिस्फाई, कौन होता है स्टेक होल्डर, एम्प्लॉई हो सकते हैं, द शेयर होल्डर्स, द स्टेक होल्डर, द ओनर, ठीक है। और जैसे हो गया आपका सोसाइटी, मीडिया, गवर्नमेंट, दीज आर द कॉल्ड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मीन्स दोज पर्सन हु आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द कंपनी। कंपनी कोई भी डिसीजन लेता है, जैसे मर्जर हुआ, एक्विजिशन हुआ, और एनी डिसीजन व्हिच इज टेकन बाय द कंपनी which are directly indirectly affect the person or group of persons, so they are called stakeholder, internal or external stakeholder. So इसका क्या होता है, they took the crux of the CSR activities, CSR activity के जो crux है, जो advantages है, उससे हम लोग बहुत CSR के बारे में जान सकते हैं। So these are the about the why CSR activities is carried on, or it help for the value creation of the stakeholder. So these are the why CSR activities. So first is what, your CSR is related to the favorable public image, attract the customer. नेक्स्ट हो गया बिल्ड पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव इमेज बिल्ड होता है। Next, public need have changed, leading the changing the expectation from the consumer. Consumer are satisfied. Then decision making, freedom of decision making. जैसे मैंने आपको बताया था, कोल इंडिया जब लैंड एक्वायर करता है तो इजी होता है डिसीजन मेकिंग में। Then internal and external environment, activity of the organization protect the internal external environment because they are interdependent system. It help for the CSR help for the balance between the authority and responsibility. जो भी authority and responsibility क्या balance हो सकता है CSR होगा तो। Then better public image, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। The atmosphere and of the society are responsible, encourage the cooperative attribute between the group of companies. इसमें क्या होता है, एक कंपनी जब CSR करता है तो दूसरा कंपनी उसको देख के CSR करने के लिए मजबूर हो जाता है। और जनरली सपोज एक सीमेंट कंपनी है, वो सोशल एक्टिविटीज कर रहा है, तो दूसरा सीमेंट कंपनी को क्या है, जैसे पेप्सी एंड कोका कोला है, तो दे आर व्हाट कंपटीटर, सब जानते हैं। तो सिमिलरली एक ग्रुप ऑफ कंपनी अगर सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री में है, तो एक अगर कोई स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है तो दूसरा ऑल्सो कंपनी फोर्स टू टेक द स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड। और एक कंपनी का बढ़िया इमेज है तो दूसरा कंपनी भी चाहता है उसका भी बढ़िया इमेज हो, इसीलिए रूल और रेगुलेशन को फॉलो करता है और CSR एक्टिविटीज को भी करते हैं। Then it help for the benchmark.
Then better companies help the better companies to better adjust to the grievances of the employee. जो भी एम्प्लॉई हैं वो लोग स्टेक होल्डर उन लोग को ग्रीवांसेस को एड्रेस करते हैं. दे आइडेंटिफाई द एम्प्लॉई एंड दे थिंक अबाउट फॉर द एम्प्लॉई एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट करके उन लोग को क्या सेटिस्फाई करते हैं. देन कंपनी stakeholder also get benefited. Financial institution, better criteria for assessment of the project. अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी पैसा दिया होता है, फॉर एग्जांपल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन दिया है कंपनी को फॉर व्हाट ग्रोइंग, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंपनी को लोन दिया है. तो इन दैट केस ऑल्सो इट हेल्प द बैंक for understanding about the how money is utilized, whether it is utilized for the same purpose which loan has been given. So these are the then government also, government को भी क्या होता है, जब कंपनी रूल रेगुलेशन को मान रही है और अडॉप्ट कर रही है बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, सो गवर्नमेंट को भी क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है. हाँ, दिस इज द कंपनी which are following the rule regulation or standard and protect the environment, satisfy the stakeholder. So government भी vigilant हो जाता है और they will think हाँ these are the company who are following the standard. So it is create a very good reputation in the eye of government also. Then corporate social voluntary guideline 2009, CSR वॉलंटरी गाइडलाइन 2009 ये क्या बोलता है? मिनिस्ट्री रिकमेंडेड द क्या हो CSR जब हुआ तो एक खाली कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट आल्सो इन्वॉल्व इन CSR फॉर व्हिच कॉर्पोरेट शुड डू द देयर जॉब प्रॉपरली विथ केयर, so that government also involved in CSR. So ministry recommended the initiative for corporate social responsibility in voluntary guideline. जो गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव था वॉलंटरी गाइडलाइन 2009 CSR पॉलिसी को लाना था. और फॉलोइंग आर द कोर एलिमेंट ऑफ योर वॉलंटरी गाइडलाइन 2009. तो ये क्या बोलता है? केयर फॉर द स्टेक होल्डर, respect the environment, respect the human rights, and fourth is your activity for the social or industrial development. So first is your care for the stakeholder. Generally those are the stakeholder. मैं जिसे पे आपको पहले बता दिया, कौन कौन है? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय हो सकते हैं और आपका कस्टमर, सप्लायर और इन्वेस्टर, योर मीडिया एजेंसी, गवर्नमेंट. All the stakeholders need to be identified and their need has to be satisfied, and any dispute if arises while settlement of their dispute is easily removed or sought out. So care for the stakeholder. Suppose एक शेयर होल्डर है, उसको डिविडेंड नहीं मिला या शेयर सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, सो उनका जो ग्रीवांसेस है उसको रिजॉल्व किया जाता है. सो केयर फॉर द stakeholder. Second, respect the environment. Naturally जो कि environment को pollute नहीं करना है, water pollution, air pollution, noise pollution नहीं करना है. Protect the environment, protect the creature, protect the nature. For example, you should not cut the trees so that it will again problem for the yourself or for the nature. Unnecessary wastage नहीं करना है. And sustainable development. Corporate should have the aim for sustainable development. Then respect the human rights and welfare. जो भी है activities should be carried on by the organization. वो क्या है? It should be safe, safety environment. Environment जो है सेफ्टी होना चाहिए, जैसे वर्किंग कंडीशन, वर्कर्स लोग के लिए इजीली सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो कराना है. उन लोग को जो है कि बस रूम फैसिलिटी देना है और उन लोग का हेल्थ रेगुलर चेकअप हो सकता है. सो दीज आर अबाउट द राइट्स एंड वेलफेयर. उन लोग को स्कूल कॉलेजेस देना है जो एम्प्लॉई है,
बच्चे लोग को पढ़ने के लिए, और उन लोग को एजुकेशन के लिए उन लोग को ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना है, डेवलपमेंट हो, और some other welfare activities has to be carried out. Next, your for social and activity for the society and inclusive development, जैसे एजुकेशन देना, स्किल डेवलपमेंट करना, ठीक है, वह उन लोग को स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और क्या है बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज जो करता है सीएसआर में कवर होता है, जैसे पानी प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी. So these are the activities which are carried on under as per voluntary guideline 2009 CSR policy. So first is care for the stakeholder, then you respect the environment, then third is your respect the worker rights and welfare, and fourth is your activities for social and inclusive development. So these are the four core element of voluntary guideline 2009 of CSR. Next is इफेक्ट ऑफ सीएसआर पॉलिसी. अगर सीएसआर पॉलिसी आप अडॉप्ट करते हैं और क्या क्या उसमें इंक्लूड होना चाहिए सीएसआर पॉलिसी में. सो मिशन विजन, हर एक कंपनी का जो है मिशन एंड विजन होता है. तो मिशन एंड विजन आर जनरली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. So CSR activities or CSR mission and vision should be is merged with aligned with the company mission and vision. कंपनी का अगर मिशन विजन जो है CSR एक्टिविटी का जो है और जो भी एक्टिविटी CSR में करेंगे अलाइन विद द मिशन. कंपनी का ऑब्जेक्टिव मिशन विजन के को लेके ही CSR का ऑब्जेक्टिव और मिशन विजन तैयार करना पड़ेगा. सेकेंड हो गया इम्प्लीमेंटेशन. आप कैसे करिएगा इम्प्लीमेंटेशन? आइडेंटिफाई द ट्रस्ट एरिया. कौन कौन सा एरिया में आप सीएसआर करना चाहते हैं, आइदर एजुकेशन सेक्टर और थ्रू द स्किल डेवलपमेंट, और विडो के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, या आप स्कूल कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट एरिया यू वांट टू डू सीएसआर. सेकंड ऑर्डर आइडेंटिफाई द मैनर ऑफ नेचर ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटी. क्या क्या का मैनर है, आइडेंटिफाई द मैनर नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटी, कहाँ करने वाले हैं, ठीक है. सो व्हिच इज द एरिया यू आर गोइंग टू फॉलो, रूरल में या योर विलेज में, टाउन में, कहाँ, व्हिच आर द एरिया यू आर गोइंग टू डू द सीएसआर एक्टिविटी. आइडेंटिफाई द नेचर एंड प्रोजेक्ट, देन मेजर द टारगेट एंड टाइम फ्रेम. कब तक करेंगे आप सीएसआर एक्टिविटी? 1 साल के लिए करेंगे, 2 साल के लिए करेंगे, कितना साल के लिए करेंगे? हाउ मेनी इयर्स फॉर व्हिच सीएसआर एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट. देन योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हाउ सीएसआर एक्टिविटीज कैन बी इम्प्रूव्ड, और उसका इवैल्यूएशन कैसे हो, क्वालिटी और स्टैंडर्ड, whether the job or work you are doing as CSR activities aligned with your corporate objective and performance management should be there. जो भी काम कर रहे हैं और जो भी एक्टिविटी हो रहा है CSR में उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है. देन ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ CSR प्रोजेक्ट. जो भी है मैकेनिज्म और असेसमेंट प्रोसेस, इस सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा सो दैट इट कैन बी कंट्रोल, सीएसआर एक्टिविटीज कैन बी कंट्रोल एंड मॉनिटर. देन मैनर ऑफ डिलीवरिंग द सीएसआर. आप सीएसआर कैसे खर्च करेंगे? कंपनी डायरेक्टली कर सकता है या थ्रू द एनजीओ और एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सेक्शन 8 कंपनी खुद एस्टैब्लिश करके या किसी आउटसाइड एजेंसी को अपॉइंट करके सीएसआर एक्टिविटी कर सकता है. हाउ दे कैन स्पेंड द सीएसआर एक्टिविटी, व्हाट माय पॉइंट. देन फंड ऑफ रिसोर्सेस, उसका बजट है, हर एक साल सीएसआर का बजट बनाना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा, कौन सा एक्टिविटी में कितना खर्चा करेंगे. सिविल में फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन में कितना करेंगे, हेल्थ केयर में कितना करेंगे, और
what are the activities? There are seven schedule of companies act 2013 में बहुत सारे एक्टिविटीज हैं। कौन एक्टिविटी में आप कितना करेंगे उसको आपको बजट बनाना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा, कौन एरिया में कितना करेंगे। देन मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप कौन सा मेथड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर देन हो गया मैनेजमेंट कमिटी, कमिटी बनाना पड़ेगा आपको। सो हाउ यू विल मैनेज द CSR एक्टिविटी, कमिटी नीड टू बी फॉर्म। सो दीज आर द इफेक्टिव CSR पॉलिसी इंक्लूड दीज आर थिंग। मिशन एंड विजन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी होना चाहिए, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ CSR। सो जनरली 9 प्रिंसिपल ऑफ CSR, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द 9 प्रिंसिपल ऑफ CSR। फर्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए बिजनेस का जो एम है क्या है, ये ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द पर्सन हु आर कंट्रोल द कंपनी। सो इट शुड बी ट्रस्ट वर्दी कंपनी। जो कंपनी रन कर रहा है वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, कस्टमर को, सोसाइटी को और स्टेक होल्डर में ट्रस्ट होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अकाउंटेबल होना चाहिए, मैनेजर शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर जॉब और रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो 4 पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रूथफुलनेस, अकाउंटेबिलिटी, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रूथफुलनेस। जो भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, व्हाट एवर द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयरिंग बाय द कंपनी, इट हैज टू बी in line with the law, rule and policy. So these are the business should or the company should do the following principle or adopt the following principles. So 9 principle business or company should adopt. So first is your business should conduct the govern themselves with ethical or transparent or accountable. That is what pillar of corporate governance. एथिक्स, रूल रेगुलेशन को मानना है, कोड और कंडक्ट है हर एक कंपनी का, उसको ओबे करना है। देन प्रोवाइड द गुड और सर्विसेज दैट शुड बी सेफ। जैसे आप जानते हैं एक प्रोडक्ट कंपनी जब बनाता है तो उसमें लिखा होता है, जैसे हो गया कोई भी हीट देखे ना, मच्छर मारने वाला, कॉकरोच मारने वाला, बी अवेयर फ्रॉम द चाइल्ड, ठीक है। सो देयर आर सम सेफ्टी इंस्ट्रक्शन इज गिवन, so it help the user to proper use of the product। जैसे फेविक्विक वगैरह है, इट इज डेंजरियस, किड्स से दूर रखने के लिए बोलता है या कोई भी एडल्ट आदमी है। तो दीज आर एनी प्रोडक्ट व्हिच आर प्रोड्यूस बाय द कंपनी हैड इज टू बी कंसीडर्ड, इट शुड बी सेफ, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, इट शुड बी ऑटोमेटिक। जैसे प्लास्टिक वन टाइम यूज होता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, वो पॉल्यूशन फैलाता है। सो जैसे अभी बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक आ गया है और जूट बैग वगैरह यूज करते हैं, सो दैट इट कैन बी अगेन रीयूजेबल। कपड़ा का बैग यूज करना है, कॉटन बैग, गॉट माय पॉइंट। सो बिजनेस शुड प्रोवाइड द गुड्स और सर्विसेज, जो भी प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज करे, इट शुड बी सेफ एंड सेफ्टी एंड सस्टेनेबल। नेक्स्ट, प्रोमोट द एम्प्लॉय को जो प्रोमोट करना है, वो लोग को कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। एनी ग्रीवांसेस ऑफ द एम्प्लॉय दे हैव टू बी सॉर्ट आउट एंड उन लोग को ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना है, उन लोग को सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचना है कंपनी को, सो दैट दे विल गेट मोटिवेटेड। देन रेस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अदर स्टेक होल्डर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, देयर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर, all the stakeholder interest should be identified, then they has to be satisfied। जैसे एक जो इन्वेस्टर का क्या इंटरेस्ट होता है कि उसका शेयर का वैल्यू बढ़े, ग्रोथ, वेल्थ इंक्रीजेस, व्हाट माय पॉइंट। एक गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है कि हर एक टाइमली उसको टैक्स मिल जाए, रूल रेगुलेशन कॉम्प्लाई हो, सो इट or the stakeholder interest has to be satisfied and
it has to be protected. Then promote the human rights. Respect and promote human rights. ह्यूमन राइट्स जैसे हम लोग बोल रहे हैं जो भी वायोलेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ, एनआरसी लेके बहुत बड़ा इशू हुआ था। सो ऐसे नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। व्हाट आर द ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू स्पीक, राइट टू ये, सो व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स हैज टू बी प्रोटेक्टेड। देन रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द रिस्टोर द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के बारे में सोचना है। द प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस इन ए सच ए वे इट शुड बी बेनिफिट फॉर द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का जो रीजनरेशन कैपेसिटी है उसको लॉस्ट होना नहीं जाना है। जैसे अगर कोल इंडिया कोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो टॉप सॉइल है, दीज आर मोर कॉस्टली वन बिकॉज इट विल टेक नंबर ऑफ ईयर टू जनरेट दैट टॉप सॉइल, बिकॉज ये फर्टिल लैंड होता है। तो उसको क्या, जब भी माइनिंग करते हैं उसको अलग से रखते हैं, माइनिंग होने के बाद उसमें भरा जाता है माइंस को, और टॉप सॉइल को अगेन वहां देके वहां पर फॉरेस्ट लैंड वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह क्रिएट किया जाता है। सो इट शुड बी टेक द एनवायरमेंट, इट शुड बी प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। नॉइज पोल्यूशन नहीं करना है, एंड वाटर एयर पोल्यूशन शुड नॉट बी देयर, एंड प्रोटेक्ट द क्रिएचर, जो भी नेचर है उसको प्रोटेक्ट करना है। देन एंगेज द इन्फ्लुएंस द पब्लिक एंड रेगुलर पॉलिसी। पब्लिक को क्या इन्फ्लुएंस करना है, गुडविल ऑफ द कंपनी। एक गांव और विलेज में अगर कंपनी जाके एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, पानी पीने का पानी फैसिलिटी दे रहा है, एंड सम अदर एक्टिविटी, इट विल नेचुरली गिव द गुड पब्लिक इमेज एंड इन्फ्लुएंस द पब्लिक। और नेक्स्ट हो गया ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो भी सोसाइटी का है उसको सपोर्ट करना है, ग्रोथ और योर इक्विटेबल डेवलपमेंट, सबके लिए ग्रोथ होना, सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी का कहा था। सो कंपनी ऑल्सो ग्रो एंड इकोनॉमी ऑल्सो ग्रो एज वेल एज द सोसाइटी ऑल्सो कीप ग्रोइंग। देन वैल्यू ऑफ द कस्टमर एंड कंज्यूमर। देखिए कस्टमर जो कंज्यूमर क्या है वो भगवान होते हैं अभी के जमाने में। सो एवरी कस्टमर और कंज्यूमर हैज टू बी आइडेंटिफाई एंड देयर गोल हैज टू बी आइडेंटिफाई and give the particular product which is needed by the customer. कस्टमर भगवान होते हैं, उनको ऐसा प्रोडक्ट दीजिए जो कि उनका बेनिफिट हो, और it should be taken care of their requirement and good quality product. It should be good quality product and best reusable product and hygienic product, whatever which is demanded by the consumer. So these are the 9 principles of corporate गवर्नेंस, एलिमेंट ऑफ कोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज योर 4 पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन बिजनेस शुड कंसिडर 4 पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दैट्स आई एम रिपीटिंग जस्ट। फर्स्ट 9 प्रिंसिपल क्या है, बिजनेस शुड कंसिडर द 4 पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, देन प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस टू द स्टेक होल्डर, देन प्रमोट द एम्प्लॉई, then take care about the your all stakeholder, protect the interest of human rights, that restore the environment, think about regular engagement of the public, and growth and equitable development, and last is your value to the customer and your consumer. So these are the 9 principles of corporate governance, very very important. Next is your factor influence the corporate governance। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करता है। So generally there are your 7 factors which are influence the corporate governance. So पहले globalization. What is globalization? Now world is ये single village. दुनिया क्या है अभी, single village है। Now click a button, you know what is happening in the world. जैसे अभी कोरोना वायरस है। Nowadays corona virus is affected total all over the world. It will affect the economy of the world. So globalization taken place. One corner of the any event will affect the another corner of the world. So globalization influence the CSR. Then
HRM, health, safety, environmental protection. So any activities done by the corporate or business, they should take about human health, safety or environmental protection. So these are the factors to be influence the CSR. Then government regulation and policy. Next हो गया, next is your government and regulatory body. Naturally, all the government agencies such as United Nations, International Labour Organization, these are the agencies, World Trade Organization, WTO, World Health Organization. So there are government regulation or authority which are directly indirectly influence the CSR. देखिए, अगर रूल रेगुलेशन होगा तो आपको मानना पड़ेगा, अगर रूल रेगुलेशन आपको नहीं मानेंगे तो आपका प्रॉफिट जनरेशन नहीं होगा, एथिकल नहीं होगा, तो कहाँ CSR एक्टिविटी करेंगे. सो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन directly indirectly influence the CSR. There are manner or there are some activities which covered under CSR. तो एक्टिविटी को आपको जानना पड़ेगा. तो जनरली द activities also covered under CSR which influence the CSR policy. So government or regulatory authority also influence the CSR. Then your advanced communication technology. अभी वर्ल्ड क्या हो गया, फुल ऑफ टेक्नोलॉजी. मैनुअल बेस से हम लोग टेक्नोलॉजी बेस में शिफ्ट कर रहे हैं. टॉक अबाउट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, दीज आर द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी. दे आर थिंकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी. ठीक है, अभी ड्राइवरलेस कार हो गया, ड्राइवरलेस कार आ गया, टेस्ला, गूगल, ये सब ड्राइवरलेस कार करे, तो ड्राइवर का जरूरत ही नहीं है. अभी शॉपिंग करने जाएंगे तो अमेजन वगैरह में जहाँ है मल्टीपल शॉप में, वहाँ पर रोबोट्स काम करते हैं. अकाउंटेंट का जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी ऑफिसर का जरूरत नहीं है, फेस स्कैनिंग है, पेमेंट के लिए कार्ड हो सकता है, सामान उठाइए कार्ड से आपका डेबिट हो जाएगा. सो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज. सो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द CSR. देन नेक्स्ट हो गया इंटरनेट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देन इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर. नेचुरली आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, रेपुटेशन और गुडविल अच्छा होगा. बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहे और रेपुटेशन अच्छा नहीं रहेगा तो CSR कहाँ से करोगे. सो द कंज्यूमर एज वेल एज द योर इन्वेस्टर हैज टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल डूइंग योर CSR. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पिलर, जो 4 पिलर हैं, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, योर फेयरनेस. देन बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द CSR, रिड्यूस द बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क जो है, बहुत सारे रिस्क हैं. क्या क्या रिस्क? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल. इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो इट विल नेचुरली इफेक्ट द कंपनी, प्रॉफिट ही नहीं होगा. बिकॉज जो है एज पर द कंपनीज एक्ट 3 साल का, पास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट देना है, तो प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे आप. सो इट्स रिड्यूस द बिजनेस रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, बिजनेस आपका अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट आप नहीं दे पाएंगे. सो इट विल ऑल्सो रिस्क ऑफ द कंपनी. सो बिजनेस रिस्क. देन इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी. अभी सबको विजिलेंट है, मतलब रूल रेगुलेशन इजीली एनीवन कैन नो द व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. एक पॉइंट भी होगा तो मीडिया बहुत स्ट्रांग है. थर्ड पे कुछ भी होगा तो अभी सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगा. सो गवर्नमेंट एज वेल एज द योर सोसाइटी इज नाउ विजिलेंट. सबको रूल रेगुलेशन पता है. सो व्हाट एवर द एक्टिविटीज डन बाय द कॉर्पोरेट, इट इज known to the government as well as the your society. So these are the some factor which influence the CSR. So first is globalization, next government regulatory bodies, then advanced communication technology, investor and consumer, corporate governance pillar, 4 pillars, then reduce the business risks, and last is increase the awareness. So these are the pillars of corporate governance which influence the CSR. Then comes to the legal part. Legal part हम लोग पढ़ेंगे. So as per the Companies Act 2013, section 135(1) define the CSR activities. So किस में applicable होगा?
कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होगा। तो जनरली कंपनीज एक्ट बोलता है नेटवर्थ, जो कंपनी का नेटवर्थ जो है 500 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा है और नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसके लिए कंपनी के लिए CSR करना जरूरी है और एक कमेटी बनाना पड़ेगा CSR कमेटी, उसको मैंडेटरी है, दे हैव टू फॉर्म द CSR कमेटी। सो वो कमेटी में क्या होगा, 3 डायरेक्टर रहेंगे, मिनिमम 3 डायरेक्टर रहेंगे और 1 डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपल्सरी CSR प्रोविजन, CSR का जो है प्रोविजन को कंप्लाई करना पड़ेगा। सो दीज आर द लीगल एस्पेक्ट, किसके लिए एप्लीकेबल है, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेबिलिटी। ऑफ CSR। सेकेंड, वन मोर क्वेश्चन, क्या ये फॉरेन कंपनी के लिए एप्लीकेबल है? यस, द CSR एक्ट is also cover the foreign company also. So every company having the net worth of 500 crores, turnover of 1000 crores or net profit of 5 crores or more in the which year? In the during the financial year, अगर करंट ईयर में अगर है तो उसको कंपल्सरी है CSR कमेटी बनाने का और CSR एक्टिविटी करने के लिए। तो पढ़ते हैं सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एप्लीकेबल टू कंपनी इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनी और सेटिस्फाई वन और मोर कंडीशन, अगर एक कंडीशन भी पूरा होता है और इससे ज़्यादा भी होता है उसको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको CSR एक्टिविटी टू कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी। क्या है, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इज 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर इज 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट इज 500 करोड़ और मोर, शुड हैव फुलफिल द अबव 3 क्राइटेरिया, एक भी और उससे ज़्यादा भी कंडीशन होगा, इन द फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूट सेल रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी, उनको को CSR कमेटी फॉर्म करना जरूरी है। देन कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ 135, एक बार एप्लीकेबल होगा तो उसको करना पड़ेगा सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट। गॉट माय पॉइंट? सो दीज आर द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135, बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी, CSR कमेटी किसको लेके करिएगा? सो जनरली CSR कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक CSR कमेटी बनता है, दे हैव टू फॉर्म द CSR कमेटी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको लेके CSR कमेटी करते हैं और 3 और मोर डायरेक्टर शुड बी देयर, वन एटलीस्ट वन शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। गॉट माय पॉइंट? अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा। If there is a private company, 2 director also can constitute a private company. 1 person है तो 2 डायरेक्टर है तब भी चलेगा और अगर एक भी डायरेक्टर है तब भी CSR कमेटी हो सकता है। और फॉरेन कंपनी होगा तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होना चाहिए एंड 1 शुड बी रेसिडेंट डायरेक्टर। सो दिस इज द प्रोविजन ऑफ CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन। So every company which as per section is applicable to constitute a CSR committee, at least 3 or more director, 3 और उससे ज़्यादा हो सकता है डायरेक्टर। सेकंड हो गया, out of 3 director 1 should be independent director, at least 1 should be independent director, at least लगा हुआ है, mark the word at least, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और unlisted public company or private company is not required to appoint a independent director, जो भी प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी है उसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, एज पर सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देन
प्राइवेट कंपनी के लिए जो है एटलीस्ट हैविंग 2 डायरेक्टर, अगर 2 डायरेक्टर है तभी दे कैन कॉन्स्टिट्यूट ए CSR committee. And in case of foreign company, CSR committee has to be at least 2 person, which 1 person should be resident director. Resident director. So these are the some provision of constitution of CSR committee. So next duty of CSR committee. क्या committee का क्या क्या duty and responsibility है? तो CSR committee to form recommended the board. बोर्ड को recommended करेगा, क्या करेगा CSR कमेटी? बोर्ड को recommended करेगा कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, how much expenditure to be made and how what are the activities to be considered and how you are monitor the CSR activities and how you the mechanism of implementation of CSR policy. तो कितना अमाउंट खर्चा करना है, कहाँ करना है, कैसे मॉनिटर करेंगे. सो दीज आर द ड्यूटी ऑफ CSR कमिटी. उसको क्या करेगा? रेकमेंड करेगा. किसको? CSR कमिटी को. सो रिकमेंडेशन शुड बी मेड. सो CSR कमिटी शुड बी फॉर्मुलेट recommended the board for CSR policy. CSR policy जो बनाएंगे उसको recommended करेंगे and shall company satisfy Schedule 7. जो भी एक्टिविटीज होगा Schedule 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को लेके करना पड़ेगा. एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, कितना एक्सपेंडिचर खर्चा करेंगे. Then manner, monitor the CSR activities, how CSR committee should be monitor policy. Then transparent, monitoring the mechanism of implementation, कैसे उसको मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करेंगे और मॉनिटर करेंगे. नेक्स्ट हो गया बोर्ड का रेस्पॉन्सिबिलिटी. दिस द ड्यूटी ऑफ द कमिटी. एंड बोर्ड का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी पॉलिसी बना उसको एक्सेप्ट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, अप्रूवल करना. तो बोर्ड हैज टू टेकिंग द अकाउंट ऑफ रिकमेंडेशन कमिटी अप्रूव द पॉलिसी. उनको क्या करेगा? अप्रूव करेगा CSR पॉलिसी को. बोर्ड से एंश्योर द एक्टिविटी शुड बी इंक्लूड ऑफ CSR पॉलिसी अंडरटेकिंग. जो भी एक्टिविटी है वो CSR पॉलिसी के तहत वो इंक्लूड होना चाहिए. देन बोर्ड शुड एंश्योर दैट द स्पेंड ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी है कंपनी का एवरेज लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है उसका 2% उसको खर्चा करना. हाउ मच अमाउंट टू बी स्पेंड, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर करना है. एंड जो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 198. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. then companies should have to give the preference of the local area around where operation or spending amount of the CSR activity. जो है कंपनी जो है लोकल एरिया को प्रेफरेंस देगा, कैसे उसको खर्चा किया जाए. जैसे जो है कंपनी क्या करेगा, गांव वाले को जो है कमिटी, गांव वालों, सपोज इन विलेज कंपनी वांट टू मेकिंग ए पॉन्ड बनाने वाला है, तो गांव का जो है जमीन जो है आपका मुखिया है उन लोग को बुलाएगा और उन लोग से कमिटी के और CSR जो कंपनी का CSR कंपनी का जो कमिटी है उन लोग साथ बैठ के व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर देयर वो लोग सॉर्ट आउट करेंगे और उन लोग को सहयोग से वहाँ का काम करेंगे. दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद द लोकल पीपुल ऑल योर पर्टिकुलर विलेज. सो दीज आर द बोर्ड ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो हम लोग जस्ट इसको ब्रीफ करेंगे. तो क्या होगा? CSR कमेटी और बोर्ड का जो फंक्शंस क्या है? कमेटी क्या है? फॉर्मुलेट द CSR पॉलिसी, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, मॉनिटर द पॉलिसी. इसको सबको क्या है? रिकमेंडेड टू द बोर्ड. और बोर्ड का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ये कमेटी का हुआ. और बोर्ड का क्या है? अप्रूव द पॉलिसी, एक्टिविटी टू बी इनकर्ड क्या होना चाहिए, और स्पेंड 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर.
ठीक है, एंड डिस्प्ले द CSR एक्टिविटी इन द वेबसाइट। वेबसाइट में जो है CSR एक्टिविटीज को क्या है, डिस्प्ले करना है। और एनुअल रिपोर्ट में भी उसको डिस्क्लोज करना है। बोर्ड का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डिस्क्लोजर, जैसे मैं आपको बोर्ड का जो बोला था, कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, बोर्ड जो रिपोर्ट में क्या आएगा, व्हाट आर द रिपोर्ट कंटेंट, कंपोजिशन ऑफ द स्कीम, जो 3 डायरेक्टर होंगे, कौन कौन होंगे कमेटी का, कंटेंट ऑफ CSR पॉलिसी का कंटेंट क्या है, रीजन ऑफ नॉट स्पेंडिंग, अगर कंपनी का जो है खर्चा हुआ 1 करोड़ का बजट था, रोज 100 करोड़ का बजट था, बट आपने खर्चा क्या 60 करोड़, सो 40 करोड़ इज बैलेंस, सो व्हाई 40 crore is not spent, that has to be reason has to be given by the board of 2% of the CSR policy average profit. So average profit कैसे निकलेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 1 2 3 3 है प्रीवियस का, ये हो गया। अगर 19-20 का करेंगे तो ये 17 क्या 18-19, ये 17-18 और ये 16-17। अगर इसका प्रॉफिट जो है कि इसमें 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ है, ठीक है, तो एवरेज कितना हुआ 6/3, 2 करोड़, 2 करोड़ का 2% इंटू 2%, 1.4 करोड़, इतना जो है खर्चा करना है। सो दीज आर द बोर्ड डिस्क्लोजर इन द CSR related information in the board report. Then manner of implementation, मैंने आपको ये डिस्कस कर लिया हूँ। So go through it. कैसे होना चाहिए CSR पॉलिसी, अंडरटेक द कंपनी, CSR पॉलिसी के तहत होना चाहिए CSR एक्टिविटी थ्रू रजिस्टर्ड ट्रस्ट। हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड द CSR एक्टिविटी, आप कैसे CSR आप खुद से कर सकते हैं या यू कैन अपॉइंट ए आउटसाइड एजेंसी। जो भी कंपनी है CSR एक्टिविटी कौन करेगा, जो सेक्शन 8 कंपनी है और कोई भी NGO है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए वो प्रोजेक्ट में, और काम क्या होना सकते हैं, तो उससे आप करवा सकते हैं CSR एक्टिविटीज। गॉट माय पॉइंट। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ CSR एक्टिविटीज। 5% से ज्यादा CSR एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है वो 5% जो टोटल CSR एक्सपेंडिचर से ज्यादा नहीं होगा। CSR का एक्सपेंडिचर जो है सपोज आपका 10 करोड़ है, तो इसका 5% जो है कितना होगा, 0.5 करोड़, 50 लाख रुपीज। 5% ही CSR एक्सपेंडिचर को आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर से का कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 5%। सो कंपनी शुड एस्टैब्लिश ए सेक्शन 8 कंपनी थ्रू हिज CSR कैन बी कैरिड ऑन, और एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड, गुड ट्रैक रिकॉर्ड शुड बी देयर फॉर द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 years. Then company also collaborate with the other company. Company can also collaborate with the other company for doing the CSR activity. आप खुद कर सकते हैं या कोई दूसरा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके भी CSR एक्टिविटीज कर सकते हैं, यू कैन, बट आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, यू आर नॉट एबल टू गेट द टैक्स बेनिफिट। So these are the manner of implementing CSR policy. Then CSR reporting, रूल 8 जो बोलता है अब CSR रूल 2014
बोर्ड रिपोर्ट कंटेंट द कम्युनिटी कमीशन 1/4/2014 से इंक्लूड द एनुअल रिपोर्ट। सीएसआर का जो है एक्सपेंडिचर है, कितना कितना खर्चा किए एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है और दिखाना है। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी बैलेंस शीट एज पर सेक्शन 381 ऑफ कंपनीज एक्ट भी एनेक्सर सीएसआर का एनेक्सर उसमें लगेगा। जो आपका शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज है उसका एनेक्सर के साथ वो लगेगा। और मैं आपको बता दिया सीएसआर डिस्क्लोज ऑफ सीएसआर पॉलिसी इन वेबसाइट, वेबसाइट में जो है सीएसआर पॉलिसी को डिस्क्लोज करना है। सीएसआर पॉलिसी एंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी डिस्क्लोज इन द कंपनी वेबसाइट, जो आपको करना है एज पर रूल 14, रूल 2014, रूल 9। नेक्स्ट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एमसीए जो है वॉलंटरी गाइडलाइन 2009, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरी गाइडलाइन 2009 का जो है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन 2009 फॉर्मुलेट द कंपनी पॉलिसी, बिजनेस शुड फॉर्मुलेट द सीएसआर पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी फॉर स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर, एंड सीएसआर जो है वॉलंटरी गाइडलाइन 2009 को फॉलो करना है। तो क्या क्या इसमें मेजर क्या क्या है, बोर्ड पॉलिसी जो है क्या क्या होना चाहिए, रेस्पेक्ट द राइट ऑफ वेलफेयर, एक्टिविटी ऑफ सोशल इंक्लूड डेवलपमेंट, केयर फॉर द स्टेक होल्डर, एथिकल फंक्शन, रेस्पेक्ट द ह्यूमन राइट। दीज आर द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरी गाइडलाइन 2009। देन व्हाट आर द एक्टिविटीज, कौन सा एक्टिविटीज सीएसआर में होगा। सो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, तो हम इसको मेजर एक्टिविटी देंगे। जैसे हो गया इरेडिकेटिंग ऑफ हंगर पॉवर्टी, गरीबी दूर करना है, भूखे को खाना खिलाना है, और हेल्थ और सेफ्टी के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए भी आप कर सकते हैं। सो फर्स्ट हो गया इरेडिकेटिंग हंगर पॉवर्टी एंड योर प्रमोट हेल्थ केयर। नेक्स्ट हो गया प्रोमोटिंग एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी एंड और एम्पावर वुमेन एम्पावर, वुमेन एम्पावर के लिए भी आप सीएसआर एक्टिविटीज कर सकते हैं। देन एंश्योर द गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस, जैसे हो गया वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए भी आप सीएसआर एक्टिविटीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका प्रोटेक्टिंग द नेशनल हेरिटेज, जैसे हो गया ताजमहल हो गया, ठीक है, नेशनल हेरिटेज को भी है इंडिया में, जैसे हो गया, और तो नेशनल हेरिटेज को जो है उसको प्रोटेक्ट के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं। देन बेनिफिट फॉर फॉरेन और विडो, जो भी है आपका आर्म फोर्स का जो है विडो है, उनका विडो है, उनका वाइफ है, उनके लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं। देन प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल स्पोर्ट्स, रूरल स्पोर्ट के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं। और दूसरा हो गया आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए भी आप खुद नहीं कर सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दीजिए, वो गवर्नमेंट खर्चा करेगा। एंड देन योर कंट्रीब्यूशन टू द फंड टू द टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेटर, जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भी आप दे सकते हैं पैसा एज ए सीएसआर एक्टिविटी। देन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गांव डेवलप करना है, विलेज को, द स्मॉल एंड देन ये slum area development. So these are the some activity of CSR schedule 7. So eradicating hunger poverty, just I am repeating, just go through it. Eradicating hunger poverty, promote education, special education employment, protecting the gender equality, women empowerment, ensure environmental safety or ecological balance, देन नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड आर्ट्स और हैंडक्राफ्ट,
मेजर बेनिफिट आर्म फोर्स और वार रेडी और दे आर डिपेंडेंट, जो भी आर्म फोर्स का है विडो और उनको डिपेंडेंट कर सकते हैं। ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ रूरल स्पोर्ट प्रमोट करना है, ओलंपिक को भी प्रमोट कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को, और these are the activities. Then rural as per activity not amount to CSR. These are the activities which are not amount to CSR. कौन कौन सा एक्टिविटी जो CSR नहीं कहलाएगा? So these are the activities which are not called as CSR activities. So any expenditure made outside the India, any project CSR project outside the India, any amount spent on that project is not called as CSR activities. Then benefit of the employee, एम्प्लॉय के लिए अगर कोई भी खर्चा करेंगे तो CSR एक्टिविटीज में वो नहीं आएगा। देन कंट्रीब्यूशन टू अदर डायरेक्टली इनडायरेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई भी खर्चा करते हैं तो वो CSR एक्टिविटीज में नहीं आएगा। देन एनी एक्टिविटी अंडरटेकिंग फॉर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलरली अगर आप करते हैं तो वो नहीं आएगा। तो रूल 4 और 6 ऑफ CSR पॉलिसी रूल 2014 क्या होता है? एक्टिविटी अंडरटेक आउटसाइड इंडिया एंड प्रोजेक्ट बेनिफिट और स्पेशल फॉर द एम्प्लॉई और कंपनी फैमिली और कंट्रीब्यूशन टू अ डायरेक्टली इनडायरेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। So these activity not called CSR. Then triple bottom line, people, planet, profit. So people क्या हुआ? Human capital. The planet is your earth, natural capital, and profit for the economy. So triple bottom line approach. So triple line approach. What is triple line? People, planet, and profit. Social, हेल्थ, तो पीपल में क्या हो? सोशल हेल्थ, आप गांव वाले के लिए और किसके लिए? सोसाइटी के लिए क्या आप कर सकते हैं? एजुकेशन डेवलप कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए खर्चा कर सकते हैं, ठीक है, और उन लोग का क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के लिए, लाइवलीहुड के लिए भी कर सकते हैं। दैट इज पीपल। एंड प्लैनेट, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को ये करने के लिए, आप दूर करने के लिए और हटाने के लिए, और रिडक्शन ऑफ एयर, वाटर और सेफ्टी ऑफ द एनवायरनमेंट आप खर्चा कर सकते हैं। देन योर एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। सोलर फ्री जो है, सोलर सिस्टम जो है कि जिससे इलन मस्क बनाया है, सोलर सिटी बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट होगा प्रॉफिट, इकोनॉमी, कंपनी जब बचेगा तब ना दूसरों को मदद करेगा। सो सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी और ग्रोथ ऑफ बॉटम लाइन, कैश फ्लो स्टैंडर्ड को आपको बढ़ाना है, कैश फ्लो बढ़ाना है, कैश फ्लो को ठीक करना है। सो दीज आर द ट्रिपल बॉटम लाइन, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, ट्रिपल पी, PPP, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल एंड प्रॉफिट। द नीड ऑफ ट्रिपल पी, क्या नीड है? सो मैंने आपको बताया इंक्रीज द कंज्यूमर, व्हाट द नीड, नीड क्या है? व्हाई? इंक्रीज द कंज्यूमर सेंसिटिविटी टू द कॉर्पोरेट, ग्रोइंग डिमांड ऑफ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इंक्रीज द एनवायरमेंटल रेगुलेशन, लीगल कॉस्ट कॉम्प्लायंस डिफॉल्ट, अगर लॉ को नहीं मानेंगे तो आपका कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो रूल रेगुलेशन को मानना है। कॉन्सर्न विद द ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों पेड़ काटा जा रहा है, सन रेज आ रहा है, क्यों पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, तो उसको दूर करना है, ठीक है, अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है। इंक्रीज द सोशल अवेयरनेस, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं, सोशल अवेयरनेस, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एनवायरमेंट, पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ, ठीक है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करना है। देन अवेयरनेस अबाउट द रेस्पेक्ट द ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट को रेस्पेक्ट करना है। अटेंशन सोशल, ये सोसाइटी, कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट हो गया ESG, एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल। सो मैंने आपको पहले जो ट्रिपल पी जो है इसका लिटिल बिट डिफरेंस नहीं है, मोस्टली एनवायरमेंटल, नेचर
नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है, कार्बन इमिशन कम करना है, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। जैसे हम लोग को स्टार वगैरह देते हैं, ठीक है ना, ट्रिपल स्टार एसी, डबल स्टार एसी। पॉल्यूशन एंड वेस्टेज को कम करना है, गुड क्वालिटी है, नेचुरल रिसोर्स को देन सस्टेनेबिलिटी, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वेल्थ को रखना है। सो दीज आर द एनवायरमेंटल। सोशल हो गया, वेल्थ एंड सेफ्टी, then opportunity and policy, then employee and training development, human rights protections, your security, social security, community program, जो कि आप सोसाइटी को डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम करा रहे हैं। गवर्नेंस मतलब हो गया आपका बोर्ड का इंडिपेंडेंसी होना चाहिए, बोर्ड कमिटी होना चाहिए, कब मिलेंगे, शेयर होल्डर राइट को प्रोटेक्ट करना है, मैनेजमेंट और कंपनी पॉलिसी एंड बिजनेस एथिक्स, जो भी बिजनेस एथिक्स है उसको फॉलो करना है। ट्रांसपेरेंसी में बोर्ड का इंडिपेंडेंसी होना चाहिए, बोर्ड का कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्म होना चाहिए, और बोर्ड का एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को मेजर होना चाहिए, शेयर होल्डर राइट को प्रोटेक्ट करना है, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट शुड बी सेटिस्फाइड। सो दीज आर द सम ऑफ द ESG example and factors. Then next is your CSR standard 2026,000 ISO standard 26,000, जो इंटरनेशनल जो है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। सो ISO 26,000 डील विद द स्टैंडर्ड गिविंग फॉर द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो क्या है, ऑल इंटरनेशनली वो स्टैंडर्ड डेवलप करता है ऑर्गेनाइजेशन, बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के ये स्टैंडर्ड डेवलप करता है। नेक्स्ट हो गया प्रोवाइड द देन इंटीग्रेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर विथ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, जो भी सोसाइटी को लेके चलना है, और सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस हैड सम सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आइडेंटिफाई करना है, इंटीग्रेट विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव शुड बी इंटीग्रेटेड। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, organizational should think about the sustainable development. Then legal compliance, all the rule regulation has to be comply or obey by the organization. So it is not only the obeying the legal compliance but it should be hard. जैसे आप बोल रहे हैं हेलमेट पहनना, आपको डर के लिए हेलमेट फाइन हो जाएगा इसलिए हेलमेट नहीं पहनना है, बट अपना सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना है। सो ओबे द लीगल और बियॉन्ड द लीगल कॉम्प्लायंस। देन इंटेंट टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी का सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होना है। देन ISO 26,000 इज नॉट मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 26,000 जो है खाली मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, इट इज प्रायर टू द सर्टिफिकेशन पर्पज ऑफ रेगुलेटरी यूज। सो दिस इज अबाउट द ISO 26,000। देन एजेंडा 2030 एजेंडा क्या है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो 17 SDGs गाइडलाइन, सो दैट इज एजेंडा 2030। 17 ठो इसमें है, जैसे इरेडिकेट हंगर पॉवर्टी, ठीक है, देन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट द सी क्रिएचर, और बहुत सारे ऐसे 17 ठो है जो कि हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिटेल इसको कवर करेंगे। सो दिस इज एजेंडा 2030 जो है SDGs गाइडलाइन। इट इज ए लैंडमार्क फॉर एजेंडा विथ ग्लोबल विजन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो खाली करंट कंट्री के लिए नहीं है, पूरा वर्ल्ड के लिए है। तो एवरी कंट्री हैज सेपरेट मिशन एंड विजन टू sustainable development, towards sustainable development. Next, your CSR assessment, how you are going to do the CSR assessment. So क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, कैसे ऑडिट करेंगे, इनिशिएटिव फॉर CSR ऑडिट प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव क्या, कवरेज, इंटीग्रेशन एंड कमेंट,
CSR का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, व्हाट विल योर मिशन, व्हाट विल योर कंपनी विजन, CSR का मिशन विजन क्या होना चाहिए। फिर इम्प्लीमेंटेशन, कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस टू बी इम्प्लीमेंटेड, हाउ मच कमिटी शुड बी, व्हाट इज द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी क्या होना चाहिए। सो ऑल द डिटेल टू बी कवर। रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ फंड, मैन पावर कहाँ कहाँ डालना है, हाउ मच मैन पावर रिक्वायर्ड, व्हेयर टू बी एंड हाउ टू बी इम्प्लीमेंटेड। द मॉनिटरी एंड रिपोर्टिंग, मॉनिटरी एंड रिपोर्टिंग। सो तीन चीज इंप्लीमेंटेशन है, प्रोसेस, रिसोर्सेस एंड मॉनिटरिंग, ये हो गया इंप्लीमेंटेशन पार्ट। ऑब्जेक्टिव में क्या था, कवरेज क्या है, स्कोप क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ CSR। देन इंटीग्रेशन, CSR objective and corporate objective should be integrated. The third objective should be commitment, ऑर्गेनाइजेशनल का कमिटमेंट होना चाहिए टुवर्ड सोसाइटी, टुवर्ड एनवायरनमेंट। देन अदर जो है इम्पैक्ट एनालिसिस, जो आप CSR कर रहे हैं वो क्या इम्पैक्ट ला रहा है सोसाइटी में, क्या ओनली गो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जो है आपका प्रॉफिट के बारे में होता है, कैश फ्लो, बट जो CSR और सस्टेनेबल रिपोर्टिंग जो ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विल गिव द ट्रू एंड फेयर बिहेवियर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, where CSR as well the sustainability report give the non financial information towards the company, कंपनी कैसा है कैसा नहीं है वो ये जो है CSR रिपोर्ट से पता चलता है। सो इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक, सो दिस इज CSR assessment. Then last is your I am giving the some example of कोल इंडिया लिमिटेड का क्या मिशन विजन जो है CSR का क्या है। सो विजन, to emerging a national player of primary energy sector, comment provide the energy society to the country and obtaining the environmentally social sustainable growth। देखो sustainable growth है, best practice for manning and to the market। This is your vision of the Coal India CSR। विजन क्या है, empower as a national player of primary sector, प्राइमरी एनर्जी सेक्टर, नेशनल प्लेयर होना है, एंड प्रोवाइड द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, अटेंड द एनवायरमेंटल सोशल सस्टेनेबल ग्रोथ टू द बेस्ट प्रैक्टिस टू द मैनेजमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द CSR। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर पेशेंस शेयरिंग। सो प्लीज डू लाइक माई चैनल, आई एम पॉसिबल कॉमर्स गुरुजी एंड दीज आर द लिंक्स। ये लिंक है जो है प्ले स्टोर में, यूट्यूब में या लिंक्डइन में या स्लाइड शेयर में जाके मेरा PPT दे सकते हैं। CSR के बारे में मैंने बहुत सारे PPT भी अपलोड किया है, गो थ्रू इट। एंड माई सेल्फ विवेक प्रजापति। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।